Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, we are here again for helping you in your examinations, whether these are the school examinations or the Olympiad one. We are definitely going to help you. And in this series, we have started the chapter Electricity of class 10th, right? And we have definitely covered the 3 lectures, and this is the lecture 4, and we will be discussing today the electric field and electric potential, right? So I am doing the very much summary जो हम लोगों ने अभी तक किया है, and we have done the Coulomb's law जो अब तक हम लोगों ने किया है, right? And हमने उसके कुछ questions किए थे, and then we did some questions about the Coulomb's law. So that was the one of the most basic, you can say, the most basic rule that govern the electromagnetism, right? And today we will be dealing with the electric field, like what is electric field and what is electric potential. We will be just talking about these two things. That's it. And you can see here that this team will be helping you in achieving your goal, whatever you have in your school examinations or whether the Olympiad level examinations, right? So this team will definitely be helping you. Now see, if you want a study material and DBP, you can access them through our Telegram channel. What you have to do, you have to go on the Telegram app. You have to write this TTP010 code, and then you will be listing out all the list. You can see the class 10 channel, and you can join it. You can access the DPPs and study material from there. So it would be very much beneficial for you. Now let's talk about the important thing I wanted to tell you is that the thing we have brought to you is we have created some packages for you. So you have to go on this website first, www.talkingtextbooks.in. You have to go on that website. On that website you will be seeing some packages like these one. All right, such packages, this is just an example for you all. So you will be seeing such type of packages there. So what are these packages? These packages is the whole concept, like आपको सब कुछ इसमें involve होगा, like आपके study material, ठीक है, टेस्ट सीरीज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो आपके रेगुलर होंगे, जो आपके रोज़ाना टेस्ट होंगे, लाइक द बाई वीकली क्विजेज, होमवर्क सबमिशन फीचर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये सभी फीचर्स आपके इन पैकेजेस में इंक्लूड हैं. You can choose them, any package, you can choose any package, right? And you can also join the test series which is just for the test, like आपको prepare करने के लिए how to deal with the questions, right? So you can definitely join any of the package. That's your choice. You have to click on buy now. If you really want to buy the package, you have to click on buy now. You will be forwarded on the price details page. Now you can see here the cost is 9,000, but if you write here CYLIVE, if you write this code CY live, then you will be getting 30% discount. That means 2,700 will be deducted from the actual amount. That means from the 9,000 or whatever the package is. Okay, so now the cost becomes 6,300. So that is the thing. If you really want to join any package, or if you really want to buy any package, whether it's the test series or the whole package, you can write this code over there. You will be getting 30% discount on that specific package. All right, and you have to click on buy package. Then you will be forwarded on all the options here. You can choose any option from these one. Now if you have any query like which package to choose, how much we are getting, what are the benefits of it, and you can really buy it or not, you can definitely have all your query resolved on this number. So definitely you can call us on this number, and there your all queries will be resolved. So this was the important information I wanted to tell you, and this is a really important one if really someone wanted to prepare for their goals, right? Now the next thing is, let's start the chapter. So take out your copies and books, let's start. So I want you to take promise yourself, you will be watching the whole lecture, you will preparing your notes, your very much detailed notes, and then you will be revising it on a daily basis. Look, class 10 is the important one. तो definitely ये बात है कि अगर आप उसको daily revise करेंगे from the very starting, तो it would be very much beneficial. आपको आगे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा, बिकॉज क्लास 10 में जो भी पढ़ाया जाएगा उसी का
हायर वर्जन आपको 11th-12th में मिलता है, राइट। तो क्लास जो 10 है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट आगे के फ्यूचर के लिए भी, और अभी का जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी। तो आप अभी से अगर रिविजन करना स्टार्ट करेंगे तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन टू रिवाइज फ्रॉम द डे 1. So let's start the topic. We will be dealing with electric potential and electric field. Now let's talk about कि भाई electric field और electric potential को डील करने के पहले हम समझते हैं कि करंट किसी भी वायर में किस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। सो लुक, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं टू मैकेनिज्म, यहाँ पे आपको टू चीज़ें दिखाई दे रही है, दो ऐसे सर्किट्स दिखाई दे रहे हैं। तो वी आर सीइंग हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इनसाइड अ वायर। एक वायर के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग हियर। नाउ यू कैन सी दिस इज अ सर्किट, ठीक है। ये है सेल, बैटरी, यू कैन से दैट, प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल। ये है कॉपर वायर, ये जो येलो कलर का वायर देख रहे हैं दिस इज द कॉपर वायर, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। फिर ये एक फैन लगाया हुआ है, दैट मीन्स ये जो करंट है ये इस फैन को रोटेट होने में हेल्प कर रहा है, ऑलराइट। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है इट इज गोइंग बैक टू इनटू द बैटरी। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज अ सर्किट। अब इसके अंदर से किस तरीके से करंट फ्लो होता है वो हम एनालॉजी बताते हैं, थोड़ा बहुत सिमिलर है। किसके? एक पाइप के अंदर वाटर फ्लो होने के सिमिलर। कैसे देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे जो हमारा वाटर पंप होता है वो वाटर पंप क्या करता है, प्रेशर बनाता है, ठीक है। प्रेशर बनाता है पाइप के अंदर ताकि एक एंड से पानी निकलकर पाइप के थ्रू जाता है, इस टर्बाइन को रोटेट करता है, थोड़ा बहुत लोड है वी कैन से, रोटेट करता है एंड इट गोज बैक इनटू द वाटर पंप। जस्ट सिमिलर, दीज बोथ आर द सिमिलर वन, ठीक है। यहाँ पे करंट को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, दिस सेल, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी के फ्लो को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, दिस वाटर पंप, राइट। नाउ यू कैन सी हियर कि इन दोनों में सिमिलर चीजें क्या है, मैं क्यों आपको ये वाटर पंप और ये सब बता रही हूँ। नाउ यू कैन सी हियर कि ये जो वाटर पंप है इसको पानी के फ्लो को बरकरार रखने के लिए, पानी के फ्लो को कंटिन्यूस रखने के लिए व्हाट इट हैज टू डू, इट हैज टू क्रिएट टू फील्ड्स, लाइक इट हैज टू क्रिएट अ हाई प्रेशर एंड अ लो प्रेशर, ठीक है। ताकि क्या होगा, पानी फ्लो होना शुरू करेगा। पानी फ्लो होता है फ्रॉम द हाई प्रेशर टू दी लो प्रेशर, ठीक है। अब आप देखेंगे जब ये प्रेशर्स क्रिएट किए गए तभी जाके पानी का मूवमेंट शुरू हुआ। पानी ऐसे ही एक पाइप में से अपने आप फ्लो नहीं होने लगेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, ताकि हाई प्रेशर से निकलकर पानी लो प्रेशर तक जाए। एंड दैट व्हाट इट इज डूइंग, ये जो वाटर पंप है ये यही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, प्रेशर को यहाँ पे हाई कर रहा है ताकि यहाँ से पानी निकले, पाइप के थ्रू होते हुए जाए एंड इट गोज बैक। यहाँ पर है लो प्रेशर तो पानी वहाँ की तरफ जा रहा है और वापस यहाँ तक पहुँच रहा है। तो द थिंग इज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, पानी को ज़बरदस्ती मूव करवाया, और वो मूव करवाने वाला जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं उसको मूव करवाने वाला जो फैक्टर है, जो उसको बोझ मतलब जो उसको बार बार फोर्स कर रहा है कि ये मूव करे, दैट फैक्टर इज द प्रेशर हेयर, ठीक है। आप चेंज करेंगे प्रेशर में देन वाटर विल फ्लो। सिमिलरली वही उसी तरीके का प्रेशर इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। इसका मतलब इस वायर के अंदर से हमें जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, सी वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं और पाइप के अंदर से वाटर फ्लो होता है, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली इक्वेट दैम बोथ कि भाई अगर हमें इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है तो देयर मस्ट बी सम प्रेशर, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो, ठीक है। कुछ एक डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग को लगाना चाहिए, ठीक है, जो कि क्या करे, इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पे मजबूर कर दे, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिस तरीके से वहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी मूव करता है, वैसे ही यहाँ पे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट मूव करता है, ठीक है। इस सेल के अंदर ये जो सेल होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल है उस पोटेंशियल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए।
सो आर यू गेटिंग दैट कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे हाई प्रेशर रीजन और यू कैन से द हाई पोटेंशियल रीजन और लो पोटेंशियल रीजन को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो वायर में से मूव करके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ सके। ये आपको करना पड़ेगा, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाटर पंप है वो तो कैसे मूव करवाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। इसी तरीके से जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए फोर्स करता है कि वो क्या करे, प्लस से यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल से, दैट इज हाई पोटेंशियल से वापस होते हुए नेगेटिव पोटेंशियल यानी कि लो पोटेंशियल में चले जाएं। सो इट इज अ रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। ये आपको मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक तरीके से मूव करवाने के लिए आपको ये बताने के लिए ज़रूरी है दैट देयर मस्ट बी सम पोटेंशियल जो कि क्या करे, मूव करवाए। किसको मूव करवाए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाए। देयर हैज़ टू बी अ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल नहीं होगा, लाइक हाई एंड लो पोटेंशियल नहीं होगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर नहीं होगा तो यहाँ पे पानी मूव नहीं करेगा। तो दैट इज द थिंग कि हमें इनको मूव करवाने के लिए वी मस्ट गिव सम प्रेशर और दी पोटेंशियल, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया क्योंकि हम उसके बाद हम डील करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। नाउ व्हाट इट इज, अभी तो आपको ये समझ में आया दैट अ पोटेंशियल इज नीडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड वी कैन से कंडक्टर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू कैन से हियर दैट व्हाट वी हैव टू डू इज, हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये जो यहाँ से करंट जा रहा है, ये करंट सिर्फ इस वजह से जा रहा है बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, द हाई पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ एंड दैट इज, तो यू कैन सी हियर हम लोगों ने जो अब तक डिस्कस किया वो ये किया दैट सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के अंदर से मूव करेंगे ओनली इफ देयर इज a difference of electric pressure called the potential difference along the conductor। एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का या फिर यू कैन से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे तो दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी मूव नहीं होगा, ठीक है। मतलब वहाँ पे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यू हैव टू नो फर्स्ट कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें एक वायर में से मूव करवाना पड़ता है, और ये मूव तभी होते हैं जब एक हाई पोटेंशियल हो और एक लो पोटेंशियल हो। तो यू कैन से दैट इट इज मूविंग, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, दैट्स हाउ वी गेट द करंट। इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, वी गॉट नो करंट, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स से that this difference of potential is produced by the cell। अब ये कौन करता है, ये potential difference कौन वहाँ पे present करता है, किस तरीके से high और low potential बनाया जाता है, this depends on the cell, राइट। वहाँ पे जो सेल बैटरी है जो कि ओरिजिन है, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है, निकल रही है। सो व्हाई वी आर डूइंग दैट, बिकॉज वी कैन सी हियर दैट जो बैटरी है, जो सेल है, उसकी वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस बनाया जा रहा है, उसकी वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, और हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। नाउ सी, ये बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलर है किसकी तरह, पंप की तरह, ठीक है। जैसे पंप क्या करता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रीजन क्रिएट करता है और उसी तरीके से पानी फ्लो करता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम वही काम हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है, बस वो सेल कर रहा है, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल का क्रिएट करता है एक फील्ड, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं, एंड दैट्स हाउ द करंट फ्लोज, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। The chemical action within the cell generates the difference in potential between the electrodes, which sets the electrons in motion and produces the current। इसका मतलब कि भाई जो सेल है वो कैसे करवा पा रहा है, क्यों करवा पा रहा है, द रीजन बिहाइंड इज उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो केमिकल्स का रिएक्शन होता है, ठीक है। उस केमिकल के रिएक्शन की वजह से यू कैन सी कि भाई जो डिफरेंस है वो पोटेंशियल का क्रिएट होता है। जैसे ही ये क्रिएट होगा डिफरेंस, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एंड करंट प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू द लो पोटेंशियल, राइट। नाउ अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि व्हाई वी स्टडी दैट, हम पोटेंशियल को पहले सीखे कि भाई जो पोटेंशियल है वो क्या काम कर रहा है एक्चुअली में, एंड देन वी गेट टू नो व्हाट इज द डिफरेंस।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट. ठीक है, अभी तक हमने स्टैटिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, राइट. हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था कि भाई एक चार्ज है, अगर वो अकेला लेट्स से वैक्यूम में है तो वो दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाता है, यही हमने डिस्कस किया था थ्रू दी कूलम्स लॉ, राइट. कूलम्स लॉ जो है वो ये बताएगा कि जो दूसरा चार्ज है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द फर्स्ट वन और द सेकेंड वन. ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो एक अकेला चार्ज होता है उसका अपना एरिया होता है. ठीक है, तो यू कैन से लाइक लेट्स से कि एक चार्ज है, उसका अपना एरिया है, दैट मीन्स द फील्ड अराउंड इट, द स्पेस अराउंड इट, जो उसके आसपास का स्पेस होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके अंदर वो अपना इफेक्ट देख पाता है. जैसे लेट्स से कि एक चार्ज है, लेट मी ड्रॉ इट. ठीक है, लेट्स से यहाँ पर हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, दिस इज अ प्लस चार्ज. ठीक है, लेट्स से इट इज अ चार्ज and you can say here that it has a field around it. You can say that it has a field around it. और अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आ जाए, ठीक है, इसके फील्ड में आ जाए, लेट्स से एक छोटा सा चार्ज घूमता घूमता यहाँ पर आ गया, तो ये चार्ज इसके ऊपर जो फोर्स फील करेगा ड्यू टू दिस चार्ज, इसको ही हम बोलेंगे दैट दिस फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा फील्ड जिसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो इफेक्ट फील करेगा, इसका प्रेजेंस होने का इफेक्ट फील करेगा, इसका प्रेजेंस बताएगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. ठीक है, यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड द चार्ज. मतलब इस चार्ज के पूरा आसपास जो स्पेस है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज. लेट्स से कि आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, राइट. लेट्स से आप अपनी जगह पर बैठे हुए इन दी क्लासरूम, और कोई अगर आपके बगल में बैठ जाए, ठीक है, और आपके बगल में बैठ जाए एंड यू आर लाइक कि नहीं बिठाना इसे, तो आप उसे हटा दोगे एंड यू क्रिएट अ फील्ड अराउंड यू. ठीक है, लेट्स से दैट इट इज जस्ट लाइक एन ऑरा, कि तुम्हारे आसपास कोई आना चाहता है कि नहीं, कि आप नहीं आने दे रहे हो किसी को अपने आसपास. तो दैट इज द थिंग कि अगर ये चार्ज है और इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर इसका इन्फ्लुएंस है, जहां पर ये चार्ज अपना प्रेजेंस रखता है. ठीक है, जहाँ पे वो अपना एक ऐसा कह सकते हैं रुतबा रखता है, यू कैन से दैट. तो अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आया तो उसको एक्सपीरियंस होगा एक फोर्स, या तो वो रिपेल करेगा या तो वो अट्रैक्ट करेगा, राइट. तो द थिंग इज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यही हुआ कि अगर कोई चार्ज है, पहली बात तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ठीक है, डेफिनेट सी बात है, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर किसी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो ये कि अगर कोई दूसरा उसमें आ जाए तो वो किस तरीके का फोर्स इफेक्ट करेगा, उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, जो कोई भी बाहर से आएगा उसको क्या एक्सपीरियंस होगा. लाइक दिस वन, अगर ये इसके एरिया में आ गया, अगर ये इसके फील्ड में आ गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, तो इसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये, या तो ये रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या तो फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट इट विल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे सिर्फ इसका राज चलेगा. ठीक है, तो दैट वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, वो क्या करेगा, अपने आसपास एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और जहाँ पे किसी और चार्ज अगर कोई आता है तो उसको एक फोर्स फील होगा, दैट इज द जस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ यू कैन सी हियर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम उसको देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट. ठीक है, हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको स्मेल नहीं कर सकते, बहुत ही कम केसेस में हम उसको देख सकते हैं, बहुत ही कम केसेस में. ठीक है, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल में हो जाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे. एंड लेकिन हम लोग इसका प्रेजेंस ज़रूर फील कर सकते हैं. ठीक है, वो इसी वजह से बाय द अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन, सिर्फ इसी वजह से हम फील कर पाते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, वरना हम उसको देख बहुत ही कम केसेस में देख सकते हैं, बट वी कैन डेफिनेटली उसको फील कर सकते हैं. हम स्मेल नहीं कर सकते, देयर इज नो स्मेल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, एंड देयर इज नो एनी, यू कैन से नो एनी एक्सपीरियंस अदर देन फीलिंग इट.
ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये चार्ज के पास तो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बट दूर जाते जाते अगर कोई यहाँ पे चला जाए, दूर चला जाए, तो दैट मीन्स उसको उसका फील्ड नहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो है इसका इफेक्ट नहीं करेगा। अब देखेंगे जैसे आप यू कैन से हर, देखो इसका जो समझने का इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, लेट्स से एक छोटी सी बॉल है आपके पास एंड इट ग्लोज, लेट्स टॉक अबाउट सन। जो सन है वो आप जानते हैं कि वो बहुत गर्म है, राइट, वो बहुत गर्म है, और वो इतना गर्म है कि अगर कुछ दूर तक अगर आप जाएंगे भी तो भी आप उसका टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप सन को तो टच कर ही नहीं सकते, बिकॉज उसके पास आते आते इतना गर्मी हो जाता है कि यू कैन नॉट टच इट। तो दैट इज द थिंग कि जहां तक उसकी गर्मी फील होती है वो उसका फील्ड है। ठीक है, यू कैन रिलेट इट विद दैट कि वो उसका फील्ड है। ठीक है, वो सन का फील्ड है, उसके फील्ड का इफेक्ट चारों तरफ है, जो भी उसके फील्ड में आएगा वो उसको फील करेगा, उसकी गर्मी को फील करेगा। जस्ट लाइक दिस कि ये जो चार्ज है उसका चारों तरफ उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो भी उस फील्ड के अंदर आएगा, जो चार्ज उस फील्ड के अंदर आएगा वो एक्सपीरियंस करेगा कोई एक फोर्स, या तो वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बट इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स। और ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी चार्ज को नहीं भेजेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगा, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एग्जिस्ट तो करेगा, बट पता करने के लिए कि क्या वो फील्ड वहाँ है, क्योंकि दिखाई तो हमको वैसे तो नॉर्मली दिखाई नहीं देगा, तो टू नो, जानने के लिए कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, हम क्या करते हैं, एक छोटे से चार्ज को वहां भेज देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम उसको भेजेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो वो इधर उधर मूव करेगा, या तो वो इसके पास चला जाएगा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, राइट, या तो वो इससे रिपेल हो जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। उसके बिहेवियर पे हम देख पाएंगे कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है and it giving you a certain type of force, an attractive one or the repulsive one। ठीक है, तो दैट इज द थिंग। अब मैंने आपको बताया, जब मैं सन का एग्जांपल आपको दे रही थी, तो यू कैन सी कि जब आप सन से दूर होंगे तो आपको सन का इतना ज़्यादा गर्मी फील नहीं होगा। ठीक है, लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं, अभी हम अर्थ पे हैं तो सन का उतना ज़्यादा आपको गर्मी फील नहीं होती, अगर आप सन के पास चले जाएं तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगी, राइट। दिस इज द थिंग कि अगर आप इस चार्ज के पास चले गए तो फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप दूर जाते हैं इसी चार्ज से, इस प्लस चार्ज से अगर आप दूर जाते जा रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होते होते वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन सी हियर the electric field intensity at any point is the strength of electric field at that point। electric field intensity क्या होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि उस पॉइंट पर, जिस भी पॉइंट पे आप इंटेंसिटी देखना चाहते हो, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आप जैसे अगर मैं बोलूँगी इस पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, लेट्स से इट्स पी, ये जो पॉइंट है इस चार्ज के बहुत पास है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी वेरी मच स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो इसका मतलब मैं बोलूँगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मैं ये बोलूँगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट Q, ये तो बहुत दूर है, काफ़ी दूर है, P से तो बहुत दूर है, राइट, कंपैरिजन में। तो यहाँ पे इस प्लस वाले चार्ज का फील्ड उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर एट Q विल लिटिल मच ऑफ वीक, यहाँ पे वीक हो जाएगा, राइट, वो उतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा। तो यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q इज लो। ठीक है, यू कैन से इट इज लो। नाउ हम बोलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, हाउ टू डिफाइन दैट, we will be defining, it is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point। that means let's say I want to calculate the electric field at Q due to this charge।
अगर मुझे Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q वाले पॉइंट पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्लस चार्ज मैं Q पे लाके रख दूंगी और फिर मैं चेक करूंगी कि इसके ऊपर कितना चार्ज लगता है, कितना फोर्स लगता है, नॉट दी चार्ज, कितना फोर्स लगता है। फिर जितना भी फोर्स लगेगा मैं पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करूंगी एंड देन आई वुड बी सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर इज दिस। वी विल बी डिस्कसिंग द फॉर्मूला लेटर इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन से, बट द थिंग इज कि हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा एक तरीका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। वी विल बी डिस्कसिंग दैट टू इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट आई होप कि आप फटाफट से इसको नोट कर लें। ऑल राइट, तो अब हमको समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, राइट। किसी भी एक चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड जहाँ पे उसका राज चलता है, जहाँ पे उसका इफेक्ट होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और जो स्ट्रांगनेस है वो उसके पास बहुत ज़्यादा रहेगी, मतलब चार्ज के पास वाले एरिया में ज़्यादा रहेगी, एंड जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी 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 मच लेस, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। Now let's say that F is the force acting on a test charge plus Q naught at any point, then electric field intensity at this point is, let's say this is a, you can say this is a charge, let's say not the Q1, let's say any charge, ठीक है, हम अभी प्लस और माइनस नहीं बताते, सिर्फ हम देखते हैं that it is a Q, ठीक है, ये एक चार्ज है, ठीक है, it is a capital Q charge। नाउ आई वॉन्ट टू कैलकुलेट कि भाई किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, ये एक चार्ज गिवन है और डेफिनेटली इसके आसपास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा। अब मैं इसको पता करना चाहती हूँ कि इसके आसपास, लेट्स से दिस पॉइंट, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट एट पी पॉइंट कि भाई इस पी पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट आई हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, ठीक है, तो दैट मीन्स इस चार्ज से लेके और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, लेट्स से इट इज आर, ठीक है, लेट्स से इट इज आर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हाउ टू डू दैट, मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक छोटा सा प्लस चार्ज लेकर आ जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से एक प्लस चार्ज, छोटा सा प्लस चार्ज, एंड दैट इज Q नॉट, छोटा सा प्लस चार्ज में लेकर आ गई और उसको मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है ये वाला जो बड़ा चार्ज है, जो कि हम जानना चाहते हैं कि इसके आसपास कितना फील्ड है एट P। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस प्लस चार्ज के ऊपर जो मैं लेकर आई हूँ P पर, वहां पर चेक करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैंने बताया दैट F इज द फोर्स, ये जो फोर्स है लेट्स से इसके ऊपर F फोर्स लग रहा है। सो व्हाट आई विल बी राइटिंग कि E का जो इंटेंसिटी होगा दैट वुड बी F पर चार्ज, ठीक है। ये जो चार्ज मैं लेकर आई पर दिस चार्ज, जो जितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस वन, ठीक है। इस पूरे Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है P पर, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी राइटिंग दिस कि इसके ऊपर अगर F फोर्स लगता है तो दैट वुड बी F अपॉन Q नॉट। व्हाट इज Q नॉट, दिस टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो वी कैन से कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, so what we have to do is we have to calculate the force and then we should divide it by the charge, all right, and if I did that, so it would be the calculation for the electric field, I would be getting the value for electric field intensity, right. Now let's see another thing, that is it a vector or a scalar,
let's see. So electric field is a scalar quantity. Why a scalar quantity? Because it has direction. It always giving you a force, all right, either a repulsive, either an attractive. It has a direction. It goes from plus to the minus, so it has a direction. That's why it is an, you can say, a vector quantity, because vector quantity always have the direction with the magnitude. Now you can definitely say electric field is a vector quantity. All right, now important thing is the SI unit. What is SI unit? SI unit is Newton per Coulomb. You can see here all along, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स है, वी नो दैट कि भाई इसका SI यूनिट न्यूटन होता है. जो चार्ज है, वी नो दैट इसका जो SI यूनिट होता है वो कूलम होता है. तो वी कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा दैट वुड बी न्यूटन डिवाइडेड बाय कूलम. सो इट इज सो सिंपल टू कैलकुलेट दैट. आप नोट कीजिए फटाफट से. चलिए, तो अब हम लोगों ने ये देख लिया है हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज डायरेक्शन. ऑल राइट, एंड वी नो द फॉर्मूला नाउ. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन पर चार्ज, है ना. फोर्स अपॉन पर यू कैन से फोर्स अपॉन चार्ज, दैट इज न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो दैट इज द SI यूनिट फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, right? And you know the electric field. Now let's talk about the electric potential. What is the potential? हम लोगों ने अभी देखा था फर्स्ट जब मैंने स्टार्टिंग किया था, तो we see that potential की वजह से electrons are moving. तो दैट मीन्स ये पोटेंशियल वही है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने पे मजबूर कर देता है, राइट? सो दिस इज द फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ रीड द डेफिनेशन आई हैव रिटन हियर. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point without acceleration or without a change in kinetic energy against the electric force due to the electric field. Now let's say here, let's say this is a plus, no, not the plus charge, let's say it has a Q. ठीक है, this is, I have written a capital Q. Now let me write a good Q. ठीक है, तो ये है एक चार्ज. ठीक है, इट इज अ क्यू चार्ज, लेट्स से. अब आप देखेंगे दैट व्हाट इज अ पोटेंशियल. पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? लेट मी टेल यू वन थिंग. देखो, ये है एक चार्ज और इसके आसपास इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, राइट? तो लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके आसपास का. यू कैन सी हियर द ब्लू वन. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, जहां पर इसका राज चलेगा, जहां पे इसका बिल्कुल बोलबाला चलता है. तो दिस इज द थिंग. अब हम देखते हैं क्या होगा. नाउ दिस इज द चार्ज, आसपास का हमने देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे. अब अगर मैं कोई और चार्ज, लेट्स से अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, व्हाई आई एम कॉलिंग इट अ टेस्ट चार्ज. वाई टेस्ट? बिकॉज जब कभी भी हम टेस्ट करने के लिए कोई भी चार्ज को लेके आते हैं तो उसको टेस्ट चार्ज बोल देते हैं, सिंपल. ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेकर आती हूँ. ठीक है, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज. और ये बेचारा इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था. अब अगर मैं इस चार्ज को लेकर आती हूँ, ठीक है, लेट्स से हम कोशिश करते हैं इसको लेकर आने की फ्रॉम इन्फिनिटी. कहाँ पर लेकर आना है मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसाना है. ठीक है, मुझे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको लेकर आना है. तो मैं इन्फिनिटी से लेकर आ रही हूँ, उसको लेकर आ रही हूँ एंड आई एम पुटिंग इट हियर. ठीक है, तो मैंने जितना काम किया, लाइक इस चार्ज को मैं लेकर आई और मैं यहाँ तक लेकर आई. ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर जो काम किया होगा इस चार्ज को यहाँ तक लेकर आने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं फोर्स लगाऊंगी, और जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही करेगा.
तो इसका मतलब मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ वर्क, राइट। तो दैट इज द थिंग। तो हम जो उसका वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब हम जितना दूर से उसको लेके आ रहे हैं, उसको वहां तक उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तब जो हमने काम किया है डिवाइडेड बाय दिस चार्ज वुड बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। यू कैन सी हियर ओनली कि देखेंगे ये जो प्लस चार्ज है ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है, हम लेकर आए इसको। यू कैन सी हियर, डेफिनेशन में भी खुद से लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं टू दैट पॉइंट, एनी पॉइंट, लेट्स से इट्स पी, तो मुझे पी तक लेकर आना है, फ्रॉम इन्फिनिटी मैं पी तक लेकर आ रही हूँ, किसको लेकर आ रही हूँ, क्यू नॉट, स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रही हूँ। बट कैसे, विदाउट एसिलरेशन, कोई एसिलरेशन नहीं है, ठीक है, आराम से लेकर आ रहे हैं, कोई एसिलरेशन वहां नहीं है। विदाउट अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे क्योंकि जब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आई तो डेफिनेट सी बात है कि मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड से लड़ना पड़ेगा, वो तो नहीं घुसने देना चाहती, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। लेट्स से इट इज रिपेलिंग, ठीक है, या फिर लेट्स से इट्स अट्रैक्टिंग, तो कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करेगी, सो आई वुड बी अ रेजिस्टेंस टू दैट, मुझे उसकी इफेक्ट में नहीं आना है, लेकिन मुझे उसको लेकर अंदर तक आना है, तो आई वुड बी फाइटिंग इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि मुझे मेरा काम करना है, मुझे पी तक पहुंचना है। That's why this is known as the electric potential. Electric potential का मतलब है moving का चार्ज। जिस तरीके से हाई और लो क्रिएट होता है पोटेंशियल, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी सेम वही हुआ है। वी हैव क्रिएटेड अ हाई एंड अ लो, यहाँ पर हाई था जहाँ से हम लेकर आ रहे थे, दिस इज लो, यू कैन से हियर, ठीक है। तो यहाँ पर वो वर्क डन, वो जो काम हमने किया उसको मूवमेंट करवाने का, कुछ डिस्टेंस चलवाने का, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, तो ये जो काम किया पर यूनिट चार्ज वुड बी द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वी विल बी सीइंग इट्स फॉर्मूला, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंस कि भाई इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। द थिंग बिहाइंड दिस इज just to do work, just to move the electrons from their places, ठीक है। तो अगर हमें कुछ ऐसा करना है, we will be doing some work on this, definitely we will be doing some work from taking a q naught from infinity to a specific point, and we are working against the electric field, and that too in a very much critical state that we are not even changing the acceleration, we are not even changing the kinetic energy of the specific charge, right, we are not doing that, but we are still going against the electric field, and we are taking that charge from infinity to a specific point, and that would be the electric potential. Means the work I have done per unit charge, that would be the potential, that would be the electric potential. So definitely you can see here that is the electric potential. Now let's move on to the formula. You can see here, let's say I have done W work, ठीक है, let's say I have done a W work, let's say I wanted to put that charge from infinity, like मैं infinity से बहुत दूर से जो है infinity से इसको लेकर आई, इस Q चार्ज को जो है हमारा प्लस Q नॉट चार्ज है, मैं infinity इसको यहाँ तक लेकर आई, और यहाँ पर एक बड़ा सा चार्ज बैठा हुआ था, ठीक है, एंड उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मैं उसके अंदर जो है लेकर आई। तो अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ऐसे किया तो आई वुड बी डूइंग अ वर्क, लेट्स से कि मैंने W वर्क किया, मैं W वर्क करके वहां से इन्फिनिटी से उठा के इसको A पॉइंट तक लेकर आई, ठीक है। तो W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to point A of electric field, then electric field or electric potential at point A is given by how, V equals to W by Q naught, ठीक है। That's how we calculate the electric potential. Are you getting it? That means कितना वर्क डन किया उस चार्ज को लेकर आने में, तो that would be the electric field. अब मीन्स उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमने जो काम किया है, तो दैट वुड बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ऑल वी हैव टू डू इज टू कैलकुलेट द वर्क डन, एंड ऑल वी हैव टू डू इज टू डिवाइड इट विद द चार्ज, दैट्स इट। जैसे ही हमने ये किया, वी वुड बी गेटिंग द पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
Alright, so we are bringing a charge Q and definitely let's say it is a Q naught too. ठीक है, क्योंकि Q नॉट को हम लेकर आ रहे हैं तो वी आर डूइंग अ Q नॉट, सो वी विल बी राइटिंग Q नॉट. जिस भी चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं पर यूनिट दैट चार्ज हमें वो करना है. ठीक है, अब नाउ दिस इज द फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट दैट. आर यू गेटिंग इट? मतलब पोटेंशियल का काम है कि वो काम करवाए. ठीक है, पोटेंशियल का काम ही यही है कि वो काम करवाए, और वो काम भी क्या करवा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है. ठीक है, चार्जेस को मूव करवाना है, तो ये उसका काम है. वो कितना काम करता है पर यूनिट चार्जेस, दैट वुड बी द पोटेंशियल. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन कि भाई जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है. वाई? इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, दैट्स वाई. ठीक है, और भी आप देख सकते हैं ये जो वर्क डन है इसका भी कोई यूनिट वो नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता. दिस इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी एंड दिस चार्ज इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी. तो जब दो स्केलर क्वांटिटीज आपस में डिवाइड हो रही हों तो द रिजल्टेंट वुड ऑल्सो बी ए स्केलर क्वांटिटी. हम ऐसे भी पता कर सकते हैं और ऐसा भी पता कर सकते हैं, बिकॉज दिस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हम सिर्फ काम कर रहे हैं. कौन सी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, कितना दूर लेके जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सो वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन हियर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द वर्क डन, कितना काम किया एंड दैट्स इट. ठीक है, तो इट वुड बी अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट आई वांटेड टू टेल यू इज ऐसा यूनिट इज जूल पर कूलम. ठीक है, यू कैन सी हियर जो वर्क डन है उसका यूनिट क्या है? जूल. ठीक है, जो चार्ज है उसका यूनिट है कूलम. वी कैन से जूल पर कूलम एज वोल्ट. ठीक है, आपने वोल्ट सुना होगा. ठीक है, कई इंस्ट्रूमेंट्स पे जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, तो उनमें वोल्ट लिखा रहता है, वोल्टेजेस जिनको बोलते हैं. सो इट्स यूनिट इज ऐसा यूनिट इज वोल्ट. ठीक है, जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं. दिस इज इट. सो दिस इज द थिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऑलराइट, देन लेट्स मूव टू द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट. अब आपको डेफिनेट सी बात पता है. वो क्या पता है कि भाई अगर मैं वोल्ट लिख रही हूँ, दिस इज द W, दिस इज द Q. अगर मैं इन सबका 1 वैल्यू कर दूँ, लेट्स से 1 वोल्ट, I want to talk about 1 volt. That means I would be doing the work done of 1 joule, right? I would be doing the work done of 1 joule. तो दैट मीन्स कि भाई यहाँ पर आई वुड बी राइटिंग 1 जूल ऑफ वर्क पर कूलम. तो दैट मीन्स आई एम ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट एंड आई एम डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क. That means I will be creating 1 volt of potential. You can see here 1 joule of work has been done to bring 1 coulomb from infinity to a point of electric field without changing in kinetic energy against electric force is 1 volt. That's it. तो अगर आप सबकी वैल्यू 1 1 1 1 कर देते हैं, so you would be getting 1 volt. ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप 1 जूल का काम कर रहे हैं एंड आप क्या कर रहे हैं, 1 कूलम को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप वहाँ पे 1 वोल्ट जो है पता कर रहे होंगे वहाँ पे. ठीक है, तो दैट वुड बी द 1 वोल्ट फॉर एनीवन. Now let's talk about the thing electric potential due to a point charge Q at a point which is at r distance is given by. Now let's talk about कि we want to calculate about you can say just a charge. ठीक है, this is a charge Q, alright, and you want to know कि भाई इस चार्ज की वजह से let's say किसी एक पॉइंट पे, let's say from the you can say the center, यहाँ पे जो है इसका सेंटर है, from center let's say कि r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर, this a पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा. हाउ टू नो दैट? तो आई वुड बी राइटिंग इट कि लेट्स से दिस इज द चार्ज, दिस इज द क्यू चार्ज एंड दिस इज पॉइंट ए. इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट द फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस आर डिस्टेंस पे यानी इस ए पॉइंट पर होगा. हाउ टू डू दैट? तो हम क्या लिखेंगे, वी वुड बी, इट वुड बी के क्यू अपॉन आर. वी आर राइटिंग दिस चार्ज इंटू के डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, राइट. तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो वी विल बी गेटिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, राइट, ड्यू टू दिस चार्ज. अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू नो दिस. ये जो फॉर्मूला है इसको आपको डिराइव करना है. ठीक है,
आप इसको डिराइव करेंगे और आप पता करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। मैं आपको बताती हूँ, इसके अंदर आएगा इसका मेन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, V इक्वल्स टू W/Q। आप उस फॉर्मूले को यूज़ करो, आप कूलम्बिक फोर्स रखो, क्योंकि हम वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। आप वहाँ पे फोर्स लिखो, फोर्स और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द चार्ज, उसको कैंसिल आउट करो, यू विल बी गेटिंग दिस। नाउ दिस इज योर टास्क, हाउ टू डील विद इट। मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से ये फॉर्मूला आप लेकर आ पाएंगे, कहाँ से, कूलम्बिक फोर्स से, एंड जो मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का W/Q फॉर्मूला पढ़ाया है, यू कैन डू दैट। अब आप देखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है किसी भी एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल स्टेट, किसी भी एक कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल स्टेट जो कि बताएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो दैट इज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर। यू कैन सी डेफिनेटली हम हर बार तो इन्फिनिटी से नहीं लेकर आएंगे ना, बिकॉज हमारे तो अर्थ पे जो चीज़ें हैं हमें तो उन्हें वर्कआउट करना है। सो वी विल बी डूइंग व्हाट पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर which determines the direction of flow charge when two conductors are kept in contact। तो आपस में जब टू कंडक्टर्स कांटेक्ट में हैं तो किस डायरेक्शन में फ्लो जाएगा, किस डायरेक्शन में करंट्स कहाँ फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल, वो डिसाइड करेगा कौन, द इलेक्ट्रिकल स्टेट, दैट मीन्स द पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं दैट पोटेंशियल इज द ओनली थिंग जो कि किसी भी चार्जेस को फ्लो करने पे मजबूर करता है, राइट, जो उसको डेफिनेटली फ्लो करवाता है, ज़बरदस्ती फ्लो करवाता है इनसाइड अ कंडक्टर, यू कैन से, बिकॉज डेफिनेटली हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो आ ही रही है, एंड व्हाई इट इज़ दैट, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज इट, ठीक है, एंड वी विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ योर होमवर्क विल बी, डेफिनेटली योर होमवर्क विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आगे के हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स है आपका होमवर्क, आप एग्जाम्पल्स करिए जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एंड उनको करिए, ट्राई आउट कीजिए, पीछे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए ऑन द डेली बेसिस, एंड दिस वुड बी डिफिकल्ट, लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट, आपको पढ़ने बैठना पड़ेगा, इट वुड बी so much difficult in the starting only, but बाद में सब easy हो जाएगा, ठीक है। So definitely start studying, and thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it. Definitely you can click on the bell icon so that you will be getting all the notifications for the upcoming videos. Thank you so much.